Shall we turn to Acts chapter 18? हम खुदा के कलाम में से आमाल की किताब बाब नंबर 18 देखेंगे And we will read verse 8. और आयत नंबर 8 देखेंगे। Acts chapter 18 and verse 8. आमाल की किताब बाब नंबर 18 और आयत नंबर 8। We will read this verse all together. हम सब मिलकर इस आयत पर गौर करेंगे, पढ़ेंगे। And Crispus, the ibadat- chief ruler of the synagogue, believed on the Lord with all his house. And many of the Corinthians, hearing, believed and were baptized. और इबादत खाने का सरदार क्रिस्पुस अपने तमाम घराने समेत खुदावंद पर ईमान लाया और बहुत से कुरिन्थी सुनकर ईमान लाए और बपतिस्मा लिया। And also shall we read from verse 24 in the same chapter और इसी बाब में हम आयत नंबर 24 में से हम पढ़ेंगे, up to the end of the chapter. 24 से लेकर आखिर तक हम पढ़ेंगे And we'll read this portion responsively. और बारी बारी से हम पढ़ेंगे। Yes. और अपुल्लोस नाम एक यहूदी इस्कंदरिया की पैदाइश खुश तकरीर और किताब मुक़द्दस का माहिर इफिसुस में पहुंचा। This man was instructed in the way of the Lord, and being fervent in the Spirit, he spake and taught diligently the things of the Lord, knowing only the baptism of John. वो इबादत खाने में दिलेरी से बोलने लगा, मगर प्रिस्किल्ला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने घर ले गए और उनको खुदा की राह और ज़्यादा सही से बताई। And when he was disposed to pass into Achaia, the brethren wrote, exhorting the disciples to receive him, who, when he was come, helped them much which had believed through grace. क्योंकि वो किताब मुक़द्दस से यीशुआ का माशियख होना साबित करके बड़े ज़ोर शोर से यहूदियों को अलानिया कायल करता रहा। Shall we pray? दुआ करेंगे। Loving Heavenly Father, ऐ हमारे आसमानी बाप, we thank and praise you for this precious day you have given unto us. आज के इस अजीम और बेशकीमत दिन को लेकर जो आपने हमें बख्शा है, हम आपका शुक्र अदा करते हैं। And we thank you, Lord, few of us who could gather here in Yehovah Shammah, and also those who could join us online in order to worship you. खुदावन जो यहोवा शम्मा में शामिल हैं और ऑनलाइन भी हमारे साथ शामिल हैं, आपकी इबादत के वास्ते इन सबों को लेकर मैं शुक्र अदा करता हूँ। We thank you, Lord, for the Lord and God we have in our lives. हमारे ज़िंदगियों में जो खुदावंद और खुदा जो हमारे साथ है, इसलिए हम आपका शुक्र अदा करते हैं। The God of Jacob is also our refuge. याकूब का खुदा ही हमारी पनाह है And he is a very present help whenever we are in trouble. और जब भी हम मुसीबत में रहते हैं तो वो हमारे लिए मुस्तैद मददगार रहता है। Others may be far away, may be absent, may ignore us, but thou would never leave us nor forsake us. लोग हमसे दूर रह सकते हैं, हमसे भाग सकते हैं, हमसे गाफिल हो सकते हैं, लेकिन आप हमारे साथ हमेशा रहते हैं। And thank you for reminding us this God of Jacob is also the Lord of hosts. और याकूब के इस खुदा को लेकर हम शुक्र अदा करते हैं क्योंकि वो लश्करों का यहोवा है। He is the one who is exalted above all. वो सबसे सरबुलंद है He is also given a name which is high above every name. और उसे सारे नामों से बुलंद नाम बख्शा गया है। And that God we thank you, Lord, He has become our God and my God. और वो खुदा हमारे वास्ते मेरा खुदा और हमारा खुदा बना है, हम आपका शुक्र अदा करते हैं। And as Paul reminds the believers in Ephesus, the name of God, this God, we can have upon us. और जैसे पौलुस रसूल ने एफसियों के लिए लिखा है और याद दिलाते हैं उनको कि इस खुदा पर, इस उसके नाम पर हम चल रहे हैं। We are also called by His name. उसके नाम से हम बुलाए जाते हैं। Therefore, O Lord, we, through our words of worship, exalted you, magnified and glorified you this evening. इसीलिए खुदावंद आज शाम को हमारी इबादत के ज़रिए से हम भी आपके नाम को जलालवर हमारे दरमियान जाहिर किया। We believe that Thou hast accepted our words of worship. हमारी इबादत को भी आपने कबूल ठहराया करके हम आपका शुक्र अदा करते हैं। Now, before we take part in the Lord's table, as we look into your word, we pray that Thou will speak to us. खुदावंद अब हम आपकी मेज़ में हाथ डालने वाले हैं और इससे पहले हम आपके कलाम को देखने वाले हैं, चाहते हैं कि आप हमसे गुफ्तगू करें। Show unto us, O Lord, how we can be exemplary children of God, exemplary believers in this world. खुदावंद हमें आप दिखाए कि इस दुनिया में आपके मोमिन या आपके बच्चे बनकर एक नमूना बनकर हम कैसे जी सकें। And thus through your word we may be able to examine ourselves and take part worthily in thy table. ताकि हम अपने आप को आपके कलाम में
कलाम के मुताबिक परख कर, जांच कर आपकी मेज़ में लायक तरीके में हम हाथ डाल सकें। And even as we travel and sojourn in this evil and wicked world, we may be examples to the world. और खुदावन इस दुनिया में, इस बदी से भरी दुनिया में हम जैसे ही सफ़र करते रहेंगे, मुसाफिर बनकर चलते रहेंगे, इस दुनिया में हम लोगों के सामने एक निशाने बन जाएं। Lord, bless our time and make it profitable. खुदावन हमारे इस वक्त पर आपकी बरकत चाहते हैं और हम सबों के लिए इसे मुबारक कीजिए। Hide also both of us completely behind the cross. हम दोनों को भी आपके सलीब के पीछे छुपा दीजिए। Thy anointing may rest upon us. आपका मसा हम दोनों पर रहे। None may go away empty from thy living presence. यहाँ से कोई भी आपकी जिंदा मौजूदगी से कोई भी खाली हाथ ना जाए। For we ask this prayer with thanksgiving in the name of our Lord and our Savior, Lord Jesus Christ. क्योंकि ये छोटी सी दुआ हमारे खुदावंद और मुनज्जी हमारे जिंदा खुदावंद यीशुआ के पाक नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल फरमाएं। Amen. आमीन। In 1 Timothy chapter 4 and verse 12, हम पढ़ते हैं कि पहले तिमोती बाब नंबर 4 और आयत नंबर 12 में Apostle Paul is admonishing Timothy that he should be an example of the believers. वहाँ पौलुस रसूल तिमोती से कहते हैं कि तुम ईमानदारों के लिए एक नमूना बन। That was his desire for Timothy. हाँ, ये है तिमोती की जिंदगी में पौलुस रसूल की चाहत। And that was because Paul realized that was the desire of the Lord towards Apostle Paul himself. इतना ही नहीं बल्कि तिमोती ने भी ये जान लिया कि पौलुस रसूल की जिंदगी में भी खुदा की मर्जी यही है। But we see in the scriptures how we can be such examples. लेकिन हम कलाम में देखते हैं कि हम इस तरह के नमूने कैसे बन सकते हैं। When we are such examples in this world, जब हम इस दुनिया में इस तरह के नमूने बनेंगे, the world will come to know the Lord easily, quickly and also quickly. दुनिया बहुत ही जल्दी खुदावंद यीशुआ को बहुत ही जल्दी जान लेगी। We will have a great impact on the people by our examples more than our preaching or teaching. कलाम कहने से या बोलने से, प्रीचिंग करने से भी ज़्यादा नमूना बनने से हम लोगों पर ज़्यादा जल्दी असर दिखा सकते हैं। There are many such examples in the scriptures. कलाम में ऐसे बहुत सारे नमूने हैं। For example, if you take the life of young man Joseph, मसलन अगर आप नौजवान इंसान योसेफ की ज़िंदगी को अगर आप देखेंगे, we can find in him in an exemplary manner how there was patience in this man. उसकी ज़िंदगी में उसे एक नमूना की तरह हम देख सकते हैं, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा सब्र था। How he had a great love even for his wicked brothers. अपने जो बुरे भाई लोग थे उनको लेकर भी उसके दिल में कैसा तहम्मुल था। And also he desired to maintain a holy life. इतना ही नहीं बल्कि उसने चाहा कि वो एक पाक जिंदगी बिताए। So in the same way there are many examples in the scriptures. इसी तरीके से कलाम में बहुत सारे नमूने हम देखते रहते So हैं। we saw last time, और हमने पिछली बार हमने देखा, maybe for the 2 weeks in the past, मसलन शायद 2 हफ्ते पहले we saw about the couple Aquila and Priscilla. हमने अक्विला और प्रिस्किला के बारे में हमने पढ़ा था। How they were exemplary lives. वो लोग किस तरह प्रिस्किला और अक्विला एक नमूना की जिंदगी वो लोग बिताए। And also we saw last time how this man Justus also led an exemplary life. इतना ही नहीं बल्कि पिछली बार हमने ये भी देखा था कि यूस्तुस नाम का ये भाई जो है उसने भी नमूना बनकर कैसा जिया। Today, as the Lord enables us, briefly we are going to see about another man called Crispus. आज हम और एक भाई के बारे में हम देखेंगे, जैसे ही खुदावंद वक्त देंगे हम इसके बारे में देखेंगे। And if time permits, और अगर और ज्यादा वक्त मिला, we will also see about a young man called Apollos. हम और एक नौजवान के बारे में भी देखेंगे जिसका नाम है अपुल्लोस। And that is why we read these verses in Acts chapter 18. इसीलिए हमने आमाल की किताब 18वां बाब में ये आयतें हमने पढ़ी थी। In verse 8 we read about Crispus. 8वीं आयत में हम क्रिस्पस के बारे में पढ़ते हैं। He was not an ordinary man. ये कोई मामूली इंसान नहीं है। The word of God records here that he was a chief ruler of the synagogue. खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि वो इबादत खाने का सरदार है। There were rulers during those days
in the synagogues. उन दिनों में इबादत खानों में सरदार रहते थे And he had a great responsibility. और उसके हाथों में बहुत बड़ी जिम्मेदारियां भी थीं। Among the rulers in the synagogue, इबादत खाने में जो भी सरदार रहते थे उनके दरमियान he was the chief, वो बहुत बड़ा था या अव्वल था, or something like the high priest. इसका मतलब ये है कि जैसे कि एक अव्वल काहिन जो होता है उसकी तरह। So he was a very important man. इस तरह वो बहुत बड़ा इंसान था। And he was therefore, because of his position, regarded and also respected. और क्योंकि उसके दर्जे के लिहाजे से उसको लोग बहुत इज्जत देते थे। And also they looked to him for counsel and godly guidance. इतना ही नहीं बल्कि लोग उसके पास आकर खुदा की रहनुमाई के लिए उसके पास आते थे। Now he could have commanded respect and also commanding the people as he liked. अगर चाहे तो वो लोगों को अपनी मनमर्जी के मुताबिक लोगों पर वो अपना रोब जता सकता था। But see his attitude here. लेकिन उसका बर्ताव यहाँ देखिए। One good thing is mentioned about him here. उसके बारे में एक बहुत अच्छी बात लिखी गई है। That he believed the Lord with all his house. अपने तमाम घराने समेत खुदावंद पर ईमान लाया। It is not only just he who believed the Lord, यहाँ ऐसा नहीं लिखा गया कि उसने अकेला खुदा पर ईमान लाया, nor he and his wife, या वो और उसकी बीवी, and he believed the Lord with all his house. उसने अपने तमाम घराने समेत खुदावंद यीशुआ पर ईमान लाया। What does it mean? इसका मतलब क्या है? This means not only he, his wife and children, but also could be, it includes also, it seems, his grandchildren. इसका मतलब ये होता है कि खाली वो और उसकी बीवी या उसके बच्चे ही नहीं, बल्कि इसका मतलब ये भी है कि उसके पोते जो होते हैं उन लोगों ने भी ईमान लाए। What a good testimony, isn't it? ये बहुत बड़ी अच्छी गवाही है ना। So not only he put his trust on the Lord, यहाँ देखते हैं कि सिर्फ उसने ही खुदावंद पर ईमान नहीं लाया, by his exemplary life and admonition, he made his children also to believe on the Lord. बल्कि उसकी जिंदगी से, उसकी जिंदगी के असर से जो एक नमूना जैसी थी, उसके बच्चे पोते भी ईमान लाए। And also because of that, the grandchildren also, they went on to believe on the और Lord. इतना ही नहीं बल्कि उसके पोते जो भी होते थे वो लोग भी खुदावंद पर ईमान लाए थे। He and his wife believed on the Lord. उसने और उसकी बीवी दोनों ने खुदावंद पर ईमान लाया। We do not know how many children he had. उसके कितने बच्चे थे हमें पता नहीं। They all believed on the Lord. वो सब के सब खुदावंद पर ईमान लाए। And then further, और उसके बाद their children's children also believed on the Lord. उसके बच्चे के बच्चे जो हैं वो भी खुदावंद पर ईमान लाए। What a challenging testimony it is. ये कितना ही बहुत चैलेंजिंग गवाही है ना। I've heard about the children, the second or third generation of some great men of God. मैंने देखा था, सुना था कुछ बड़े मर्दे खुदा के सेकंड जनरेशन या तीसरे जनरेशन के नस्ल, उनकी नस्ल जो होती है, That even they departed from this world as unbelievers. वो लोग इस दुनिया में खुदा को छोड़कर काफिर बनकर इस दुनिया से गुजर गए। What a sad thing, isn't it? कितनी ही बड़ी गमज़दा की बात है ना। But Crispus was not like that. लेकिन क्रिस्पुस ऐसा नहीं था। And then we read in the same verse, और इसी आयत में हम पढ़ते हैं, and many of the Corinthians hearing believed and were baptized. और बहुत से कुरिन्थी सुनकर ईमान लाए और बपतिस्मा लिया। See now this testimony and exemplary life is spreading to others outside his family. देखिए अब उनकी ये गवाही और नमूना बनकर ये जो जिंदगी जी रहे हैं उसके बारे में उसके घर के बाहर अब ये बात फैल रही है। It doesn't say the other Corinthians just believed on the Lord. यहाँ ऐसा नहीं लिखा गया कि कुरिन्थी लोग खुदावंद पर ईमान लाए। Hearing, they believed the Lord. यहाँ लिखा हुआ है कि कुरिन्थी लोग सुनकर ईमान लाए। कैसे सुन सकते हैं? कैसे सुन सकते हैं? Unless they preach, they are preached to, they cannot hear and believe. अगर उन लोगों को बताया जाता है
तो ही वो लोग सुन सकते हैं, मनादी की जाती है तो ही वो लोग सुन सकते हैं और ईमान ला सकते Not हैं। few Corinthians, कुछ कोरिन्थी लोग नहीं, many of the Corinthians. बहुत से कोरिन्थी। See how effective his life has been. उनकी जिंदगी का असर कैसा है देखिए। So they heard the word. तो उन्होंने क्या किया, कलाम सुना। They saw the exemplary life of Crispus and his family. उतना ही नहीं बल्कि क्रिस्पुस और उसके घराने की जिंदगी जो एक नमूना जैसा है, उन्होंने वो भी देखा। And they also came to believe the Lord. और उसके बाद वो लोग खुदावंद यीशुआ पर ईमान लाए। And it did not stop there. यहाँ से वो लोग रुक नहीं गए। See the last word, और आखिर में last देखिए, part, and were baptized. और बपतिस्मा लिया। They not only believed on the Lord, but also testified in the waters of baptism. वो लोग खुदावंद पर ईमान लाए। इतना ही नहीं बल्कि वहाँ रुक नहीं गए, बल्कि यीशुआ में बपतिस्मा भी लिए। This is the completion of the conversion. ये है एक इंसान का बदलाव जो होता है उसका मुकम्मल तस्वीर। See in the Acts of the Apostles and chapter 2, देखिए आमाल की किताब बाब नंबर 2। and when Peter preached on the day of Pentecost, और पेंतुकोस्त के दिन जब पतरस पैगाम देता है, some thousands of people were there. वहाँ पे कुछ सैकड़ों लोग, हजारों लोग वहाँ मौजूद And थे। if you read verses 8, 9 and 10, अगर आप 8 और 9 और 10वीं आयतें पढ़ेंगे, even verse 11 also, 11वीं आयत में भी people speaking 14 languages were there. वहाँ पे 14 जुबान बोलने वाले लोग थे। But Peter was preaching to them. लेकिन पतरस उनसे कलाम कर रहा था। And there the Holy Spirit of God did his work. तब क्या हुआ था, वहाँ पे रूहुल कुद्स जो है वो काम करने लगा। What was that work? हाँ, वो काम क्या था? Without any translators, कोई भी तर्जुमा करने वाले के रहने के बगैर, there was no Dr. Sridhar there. वहाँ पे डॉक्टर श्रीधर नहीं था। And what happened there? क्या हुआ था वहाँ पे? 14 translations took place. वहाँ पे 14 जुबानों में तर्जुमा किया गया। We just cannot understand this. हम इसको समझ नहीं सकते। Only one man is speaking. एक ही आदमी बात कर रहा About था। 3,000 people तकरीबन 300 लोग थे in वहाँ their पे, own 3000 language. लोग In थे। their own language they heard. और उन सभी लोगों ने अपनी ही जुबान में उन बातों को सुन सके। What a wonderful thing, isn't ये it? कितनी अजीब बात है ना। And now because of that preaching, they were all pricked in their heart. और क्योंकि उन्होंने ये कलाम सुना, उस कलाम के जरिए से, पैगाम के जरिए से अपने दिल में घायल हो गए। That's what we read in verse 37. और आयत नंबर 37 में यही हम पढ़ते हैं। Acts chapter 2 and verse 37. अमाल की किताब बाब नंबर 2 और आयत नंबर 37। But now when they heard this, they were pricked in their heart. जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों में चोट लगी। What is this chot? ये चोट क्या है? It is the message of the ये gospel. खुदा की खुशखबरी का पैगाम है। It is a good news. ये खुशखबरी है। It is a gospel of ये salvation. नजात की खुशखबरी है। So when they heard that, जब उन्होंने वो सुना, they were pricked in their heart. उनके दिलों पर चोट लगी। And then they asked Peter and the other apostles. तब उन्होंने आकर पतरस और बाकी रसूलों से कहा, And they asked, what shall we do? उन्होंने कहा, ए भाइयों, हम क्या करें? Then comes the answer in verse 38. तब वर्स 38 में उसका जवाब आता है। Then Peter said unto them, repent and be baptized. पतरस ने उनसे कहा, तौबा करो और बपतिस्मा लो। So repentance. तो पहला तौबा आता है। So that speaks about their belief turning towards God. इसका मतलब क्या है? खुदा की तरफ मुतवज्जे होना। And also they took baptism. और इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने बपतिस्मा भी लिया। This is the completion of their conviction and salvation. उनकी नजात का मुकम्मल तस्वीर है ये। Surely this is what happened even in the among the Corinthians. ऐसा ही कोरिन्थियों के दरमियान में भी हुआ था। All because of Crispus and his family. ये सब इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि क्रिस्पुस और उसके घराने के बदौलत They believed on the Lord. उन्होंने खुदावंद पर ईमान लाया। They were also witnesses for the Lord. इतना ही नहीं बल्कि वो लोग खुदावंद के लिए गवाह बनकर रहे। Now the question is, अब सवाल ये खड़ा होता what है, about us and our families? हमारे बारे में और हमारे घरानों के बारे में क्या है, क्या कहा जा What सकता will है? the Holy Spirit of God write and record about us? खुदा का पाक रूह हमारे बारे में क्या लिख सकता है? There is a testimony about some families in the
the word of God. खुदा के कलाम में कुछ घराने के बारे में कुछ गवाहियां लिखी गई हैं। One such family is the family of Abraham. और उनमें से एक घराना है अब्राहम का घराना। What sort of family they were? अब्राहम का घराना किस तरह का घराना We है? read about them in Hebrews and chapter 11. इब्रानियों की किताब बाब नंबर 11 में उनके बारे में हम पढ़ सकते हैं। Hebrews and chapter 11. इब्रानियों की किताब बाब नंबर this- 11 In this chapter we read about the heroes of faith. 11वां बाब। यहाँ पे हम ईमानदारों में से जो हीरोज थे उनके बारे में पढ़ते हैं। And see what we read about Abraham. यहाँ पे अब्राहम के बारे में हम क्या पढ़ते हैं Verse, देखेंगे। verse 9. 9वीं आयत। By faith he sojourned in the land of promise as in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. ईमान ही से उसने मुल्क मऊद में इस तरह मुसाफिराना तौर पर बूदबाश की के गोया गैर मुल्क है और इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी वादे के वारिस थे खैमों में सुकूनत की। Where are they dwelling? कहाँ रहते थे वो लोग? They were tent dwellers, all of them. वो लोग सब के सब खैमों में रहने वाले थे। Or we can call them as a tent dwelling family. या हम उनके बारे में ये कह सकते हैं कि वो लोग खैमों में रहने वाला खानदान हैं। As we read about Crispus here, यहाँ पे हम क्रिस्पुस के बारे में पढ़ते हैं। with a family he believed on the Lord. उसने अपने तमाम घराने समेत खुदावन पर ईमान लाया। And similarly here Abraham, इसी तरीके से यहाँ अब्राहम भी his family, अपने घराने that समेत, is he and Sarah. इसका मतलब है कि वो और सारा। That's what we read about them in Genesis chapter 18. पैदाइश की किताब बाब नंबर 18 में उनके बारे में ऐसा ही हम That पढ़ते not हैं। only Abraham was in the tent, but also Sarah was in the tent. वहाँ लिखा होता है कि अब्राहम ही नहीं था उस खैमे में बल्कि सारा भी थी। And later on we see how Isaac also was a tent dweller. उसके बाद हम पढ़ते हैं कि इसहाक भी खैमे में रहने वाला था। And even after that, Jacob the deceiver, he also was in the tent. उसके बाद धोखेबाज जो था मतलब याकूब जो था वो भी खैमे में रहने वाला बन So गया। we can call them as a tent dwelling family. इस तरह की से हम कह सकते हैं उस घराने को कि वो घराना खैमे में रहने वाला घराना था। If you went and asked Abraham, अगर आप जाकर अब्राहम से अगर पूछे होते what he would say? वो क्या कहता? Our family is a tent dwelling वो family. शायद ये कहता था कि हमारा घराना जो है वो खैमे में रहने वाला घराना है। Tent means two things. खैमे का मतलब है दो बातें होती हैं यहाँ पे। It speaks about separation. खैमा का पहला मतलब है अलग होना। And secondly, it speaks about testimony. दूसरा मतलब है गवाही। While all others were living in houses, उनके इर्द गिर्द सब के सब लोग जब घरों में रहते थे, मकानों में रहते थे, Abraham chose a tent life. लेकिन अब्राहम ने खैमे में रहने की जिंदगी को चुना। Sarah was willing to join Abraham in the tent life. सारा चाहती थी कि मैं भी एक खैमे में ही अब्राहम के साथ रहूंगी। Sarah did not say, no, I will not stay in this tent house. सारा ने ये नहीं कहा कि ना मैं इस खैमे के घर में नहीं रहूंगी। And what about Isaac? इसहाक के बारे में क्या है? He did not say, you two husband and wife stay in the tent, I will build a house for myself. उसने ये नहीं कहा कि आप दोनों मियाँ बीवी उस खैमे में रहो लेकिन मैं अपने लिए एक बहुत बड़ा मकान बना लूंगा। Isaac was the only son. इसहाक तो अकेला बेटा था ना। He could have chosen his own way. उसने शायद अपनी मनमर्जी के मुताबिक एक राह चुनकर जा सकता था। What is Isaac saying? लेकिन इसहाक क्या कहता है? Papa, अबू, Mummy, अम्मी, like you both, I will also stay in the आप tent. दोनों की तरह मैं भी खैमे में ही रहूंगा। I've seen the blessing in the tent. मैंने खैमे में खुदा की बरकतें देखी I've है। seen the Lord's presence in the tent. मैंने खैमे में खुदा की मौजूदगी देखी I've है। seen the Lord's safety and protection in the tent. मैंने खैमे में खुदा की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ देखी है। Tent is not a palace. खैमा एक महल जैसा नहीं है। Most undesirable place of dwelling it is. वो तो बहुत मुश्किल जगह है जहां हम इंसान जी नहीं सकता। It is not a comfortable place to dwell. वहां आरामी नहीं मिलती। But still Abraham chose that. लेकिन अब्राहम ने उसे चुना Sarah joined. और सारा आके वहां रही। Isaac also followed that. इसहाक भी उनकी पैरवी की। And seeing all, Jacob also followed और ये that. सब कुछ देखकर याकूब भी उनके पीछे पीछे चला गया। And tent life is also a life of testimony. और
खैमे की जिंदगी जो है वो गवाही की जिंदगी है। separation from all the others, सब दूसरे लोगों से अलग हो जाना and also life of witness and testimony. और उसके बाद गवाह बनकर शाहिद बनकर जीना। Then secondly, और उसके बाद we see about Jacob later on. याकूब के बारे में हम बाद में देखते What हैं। did Jacob do? याकूब ने क्या किया था? Oh, he prepared himself and his family when the Lord told him to go to Bethel. उसने अपने और अपने घराने को उसने तैयार किया था जब खुदा ने कहा था कि तू बेतेल को जा। We find the details in chapter 35, book of Genesis. पैदाइश की किताब 35वां बाब में हम इसके तफसीलात हम देख सकते And हैं। the Lord told Jacob, arise and go to Bethel. वहां पे खुदावंद यहोवा कहते हैं याकूब से कि तू उठ और तू चल। Nothing else the Lord spoke to Jacob. और उसके अलावा खुदा ने याकूब से कुछ और नहीं वहां But कहता what है। is Jacob doing here? लेकिन याकूब वहां क्या करता In verse है? 1 he says, arise and go to Bethel. पहली आयत में वो कहता है खुदा के उठ और बेतेल को जा। Now see verse 2. अब दूसरी आयत को See देखिए, what he is telling his family. अपने घराने से वो क्या कहता है? Then Jacob said unto his household and to all that were with him, put away the strange gods that are among you, and be clean, and change your garments. तब याकूब ने अपने घराने और अपने सब साथियों से कहा, बेगाना देवताओं को जो तुम्हारे दरमियान हैं दूर करो और तहारत करके अपने कपड़े बदल डालो। Verse 1, पहली आयत, arise and go to Bethel. वहां पे खुदा कहता है कि तू उठ और बेतेल को जा। Verse 3, और तीसरी आयत, Jacob is saying almost the same words. यहाँ पे तकरीबन इन्हीं अल्फाज को याकूब दोहरा रहा है। He's saying these words to his family. उसने ये बातें अपने घराने के सामने He says, दोहराया। let us arise and go up to Bethel. वो कहता है कि हम उठेंगे, आओ हम रवाना होंगे और बैतल को जाएंगे। But in between verse 1 and verse 3, there is this verse 2. लेकिन पहली आयत और तीसरी आयत के बीच में दूसरी आयत है। Very important verse. बहुत अहमियत की बातें हैं वहां पे। He's willing to go to वो Bethel. तो बेतेल को जाने के लिए तैयार He's था। ready to go to वो Bethel. बेतेल को जाने के लिए वो मुस्तैद था। He wants to go to वो Bethel, बेतेल को जाने का ख्वाहा था। but not just as he and his family were. लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो और अपना घराना ही नहीं, They do not want to go as they are. वो लोग जैसे थे वैसे ही जाने के लिए तैयार नहीं थे। See what is he saying here? वो यहाँ क्या कहता है Put देखिए, away the strange वो gods. कहता है कि आप लोग आपके दरमियान जो बेगाना देवताएं हैं उनको तुम दूर करो। Jacob knew there were strange gods with his wives and children. याकूब को पता था कि उसकी बीवियां और बच्चों के दरमियान उनके पास बेगाना देवताएं होने की चांसेस हैं। With those gods he cannot go to Bethel. उन देवताओं को लेकर वो बेतेल को नहीं जा The Lord will सकता। not be pleased with him. खुदावंद यहोवा उससे खुश नहीं होगा। The Lord cannot bless him there. खुदा यहोवा उनको वहां बरकत नहीं देगा। So what is he doing? इसीलिए वो क्या करता है? He says, put the strange gods that are among you, put away. वो कहता है बेगना देवताओं को जो तुम्हारे दरमियान है दूर करो। This is what is required in our lives. हमारे जिंदगियों में भी यही चाहिए। I'm not saying that to condemn you that you have got strange gods. मैं इस बात को कहकर आप पर इल्जाम नहीं लगाता कि आपके पास भी बेगाना देवताएं हैं। Whatever takes the place of God or anything that takes the place of God in your life is a strange God. लेकिन आपकी जिंदगी में, मेरे कहने का मतलब यह है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी, जो चीज भी खुदा की जगह लेती है वो एक बेगाना देवता है। Nobody else may know that. दूसरे किसी को भी इस बात का पता नहीं रहता Even शायद। sometimes your own family members may not know that. कभी कभार आपके घराने में आपके लोगों को भी पता नहीं रहता। In your assembly, in your mandali, in your church, they may not know that. आपके चर्च में, आपके इक्लीसिया में किसी को भी ये बात पता नहीं But चलती। the Lord knows that. लेकिन खुदावंद को ये बात पता But है। if you have to come to Bethel, लेकिन आपको अगर बेतेल को आना if है, you have to be in Bethel and receive the blessings of Bethel as a family, अगर आपको बेतेल को जाना है, बेतेल में रह के घराने समेत खुदा की बरकतें हासिल करनी है, these strange gods have to be put away. तो ये बेगाना देवताएं जो हैं उनको दूर करना बेहद जरूरी है। And then secondly he says, और दूसरी बात ये, be clean. वो कहता है तहारत करो। What is the meaning of that? ये तहारत क्या है? Maybe because of their journey all along,
their garments are soiled. शायद बहुत दूर सफर करने की वजह से उनके कपड़े जो हैं, लिबास जो हैं, गंदे हो गए So हैं। these garments should not be thrown away, but they need to be washed. कपड़े जो होते हैं उनको फेंक नहीं देते, बल्कि उनको हम साफ कर देते हैं, धो लेते हैं। And then he adds one more word here. और इसलिए ये और एक बात कहता है, Change your वो garments. कहता है कि अपने कपड़े बदल डालो। The garments have been totally defiled. वो ये कपड़े जो हैं ये बहुत गंदे मैले हो गए हैं। Dear beloved, according to Ecclesiastes chapter 9 and verse 8, अजीजों, वाइस की किताब 7 के नौ का 9 के 8 के मुताबिक it says, let thy garments be always white. वहाँ लिखा हुआ है कि तुम्हारा लिबास जो है हमेशा वो साफ रहे। So that speaks about cleansing and purifying our garments. तेरा लिबास हमेशा सफेद हो, इसका मतलब है हमेशा अपने लिबास को तुम साफ करके रखो। But if there are untold garments in your life, spiritual garments, लेकिन अगर आपकी जिंदगी में कोई रूहानी लिबास जो हैं, what you must do? क्या करना चाहिए आपको? You must put it away. अगर वो नापाक हैं तो उनको दूर करना चाहिए। One example we find in Achan. आकान की जिंदगी में इसके बारे में एक तमसील हमें मिलता है। What did he do? उसने क्या किया था? He brought a Babylonian garment and hid it in his own tent. उसने क्या किया था? शिनार का कपड़ा ले आकर अपने खैमे में उसने छिपा दिया था। So what was the command given by Joshua? यहोशुआ ने क्या कमांड या हुक्म दिया था? Those garments with all the other Babylonish things had to be removed, and they were stoned, and a heap of stone was put upon them. उसने हुक्म दिया था कि उस शिनार का कपड़ा जो उसने ले आया था उसके साथ और बाकी चीज़ें जो उसने मालूम चीज़ें ले आया था उन सबों के साथ उसको भी मार कर उसके ऊपर पत्थरों का ढेर बना दिए। In other words, we have to put away with such Babylonish garments. इसका मतलब यह है कि इस तरह के शिनार या बबलोन के कपड़े या लिबास जो होते हैं उनको दूर करना चाहिए। In other words, we have to enter into a life of separation. इसका मतलब ये होता है कि हमें अलगाव की जिंदगी जीना सीख लेना चाहिए। Then only they can go to Bethel. उसके बाद ही हम बेतेल में जा सकते हैं। So the family responded to Jacob's call. तो यहाँ पे ये घराना जो है वो उन्होंने याकूब के इस पैगाम के तामील हुए। And see what they are doing in verse 4. और उसके बाद आयत नंबर 4 में क्या कर रहे हैं? They gave unto Jacob all the strange gods. तब उन्होंने सब बेगाना देवताओं को जो उनके पास थे याकूब को दे दिए। Secondly, और दूसरी बात, all their earrings which were in their ears. और इतना ही नहीं बल्कि उनके कानों में जो भी और मुंदरों को जो उनके कानों में थे उनको भी याकूब को दे दिए। See, we can understand strange gods. बेगाना देवताओं के बारे में तो हम समझ सकते हैं। But what about these earrings? लेकिन ये इयररिंग्स या इन मुंदरों के बारे में क्या है? It seems those days, उन दिनों में the heathen, they were wearing these earrings as a sign of good luck, it seems. उन दिनों में ऐसा कहा जाता है कि ये गैर कौमी लोग जो होते थे उन्होंने अपने कानों में मुंदरों को एक अच्छा सा गुड लक के लिए पहनते थे। And also to ward off all the evil from them. बल्कि उनका ये भी ईमान था कि इन मुंदरों की वजह से उनके पास कोई भी बदी नहीं आती। These are heathenic practices. ये गैर कौमी आदतें हैं। So they gave these also away. और उन्होंने क्या किया था? इनको भी निकाल कर उनको दे दिए। But Jacob said only, put away the strange gods. लेकिन याकूब ने तो सिर्फ ऐसा कहा था कि बेगाने देवताओं को तुम दूर करो। But see the thing, the effect and impact in the family. लेकिन घराने में जो असर हुआ है वो देखिए। These hidden earrings were also given away. उन्होंने क्या किया था? कान के मुंदरों को भी उन्होंने निकाल कर दे दिए। And what did Jacob do? और याकूब ने क्या किया He था? hid them under the oak which was by Shechem. उसने क्या किया था? बलूत के दरख्त के नीचे उसने दबा दिया था। What is the meaning of this?
इसका मतलब क्या है? It speaks about burying those things. इसका मतलब ये है कि इन बातों को, इन चीजों को दफन करना चाहिए। That is what we testify in the baptism. यही इसी बात को हम बपतिस्मा में गवाही के तौर पर बताते I हैं। am not only dead with Christ, मैं उसमें उस वक्त क्या कहते हैं? मैं यीशुआ के साथ मुर्दा हूँ, and I am also not only dead to all the dead things and sinful things, और इतना ही, यानी मैं इस दुनिया के सारी मुर्दा बातें या मुर्दा चीजें जो होती हैं उनको लेकर उनके वास्ते में मुर्दा हूँ, but by faith I also bury all of them. और इतना ही नहीं बल्कि मैं ईमान के वसीले से उन सभी चीजों को मैं दफन कर And देता then हूँ। we say, I am risen with Christ. और उसके बाद हम कहते हैं कि अब मैं यीशुआ के साथ फिर से जिंदा हो So गया when you हूँ। rise with Christ, तो जब आप यीशुआ के साथ फिर से जिंदा हो जाएंगे, all these things remain ये buried. सारी चीजें हैं जो हैं वो दफन होकर दब कर नीचे रह जाएंगी। That is the meaning of these things being hid in the oak in Shechem. शेकेम के बलूत के दरख्त के नीचे इन चीजों को दबा देने का मतलब यही है। So in other words, और दूसरे अल्फाजों में if you went and asked Jacob, अगर आप याकूब के पास जाकर पूछेंगे what he will say? तो वो क्या कहेगा? As a family, we have put away strange वो gods. कहेगा कि हम ये घराना, हमारा घराना पूरा इन बेगाना देवताओं को दूर कर दिए, We have done away with the unwanted garments. और जो नापाक लिबास जो है उनको भी हमने निकाल दिए, And the soiled garments, we have purified them. और जो गंदे कपड़े हैं उनको भी हमने पाक कर लिए। So the gods are buried. तो क्या हुआ? यहाँ बेगाना देवताओं को उन्होंने दफन कर दिया, And also the earrings that they had. और उनके पास जो उनके कानों में मुंदरे थे उनको भी उन्होंने दफन कर दिया। So even as we take part in the Lord's table, तो जैसे ही हम खुदा की इस मेज में हाथ डालने के लिए आ चुके हैं, can we honestly and sincerely say that our old man, old nature, old practices, old things and traditions are buried? क्या हम पूरे दिल से, तहे दिल से ऐसा कह सकेंगे क्या कि मेरी जो पुरानी आदतें थीं, मेरी जो पुरानी बातें या चीज़ें हैं, उन सबों को मैंने दफनाया? They can be buried only when they are crucified. वो कब आप दफना सकेंगे? जब आप उनको भी मसलूब करेंगे, उसके बाद ही आप उनको दफना सकेंगे। These all come into our lives, remain in our lives because of the old man and the old nature. ये सारी चीज़ें, सारी बातें हमारी ज़िंदगी में इसलिए शामिल रहती हैं क्योंकि हमारी ज़िंदगी में पुराना इंसान या इंसानियत काम में है, And this old man must be और crucified. इस पुरानी इंसानियत को हम मसलूब करना When चाहिए। he's crucified, he's dead. जब उसे मसलूब करेंगे वो मुर्दा रहेगा, But that is not the end. लेकिन वो इख्तिताम नहीं है। The old man, the old nature, with all the effects of the old man, must also be buried. बल्कि इस पुरानी इंसानियत को तमाम आदतों से या ये सारी पुरानी बातों के साथ, चीज़ों के साथ हमें दफनाना चाहिए। Then thirdly, तीसरी बात, we see about another family in the book of Joshua. यहोशुआ की किताब में और एक घराने के बारे में हम देखते We हैं। all know about that family. उस घराने के बारे में हम सबों को पता What है। is that family? वो घराना क्या है? A family that chose to serve the Lord. वो घराना वो है जो खुदावंद की खिदमत गुजारी करने के लिए जिन्होंने चाहा था। That is what Joshua declares in the book of Joshua chapter 24 and verse 15. यहोशुआ की किताब में चैप्टर 24 और आयत नंबर 15 में यहोशुआ यही कहता है। What does he say there? वो यहाँ क्या कहता है? As for me and my house, we will serve the Lord. उसने वहाँ कहा था कि मैं और मेरे घराने की बात यह है कि हम हमारे खुदावंद यहोवा की परस्तिश करेंगे। He does not say, I and my house, we will or we may serve the Lord. उसने ऐसा नहीं कहा कि मैं और मेरा घराना जो है खुदावंद यहोवा की परस्तिश शायद करेंगे, But he says, we will serve the Lord. लेकिन वो कहता है कि मैं और मेरा घराना जरूर यहोवा की परस्तिश करेंगे। Shows their determined decision. यहाँ ऐसा इसमें पता चलता है कि उन्होंने थाम लिया था ऐसा करने के लिए। Who is Joshua? यहोशुआ कौन है? Why did he take that decision? इस तरह का डिसीजन, फैसला उसने क्यों लिया था? Because he began his life as a servant of the man of God. क्योंकि उसने खुदावंद के मर्दे खुदा के खादिम बनकर अपनी जिंदगी शुरू की थी। The scripture, the Bible tells that he was pouring water
on the hands of Moses his master. कलाम बयान करता है कि यहोशुआ अपने आका मोशे के हाथों पर पानी डालने वाला था। And from that position, उस मकाम से, the Lord chose him as a successor to his master himself. उस दर्जे से खुदा ने क्या किया था, उसको बुलंद करके उसके आका के मकाम में, जगह में आने तक उसको बढ़ाया खुदा ने। Now all these years, Joshua was very carefully observing the life of his master Moses. इतने सालों में यहोशुआ ने क्या किया था, अपने आका मोशे जो था उसकी जिंदगी को गौर से देखते आया। What did he find? क्या पाया था उसने? One main thing. ये एक अजीम बात, बड़ी बात को देखी He थी। served the Lord and the Lord alone. हाँ, उसने देखा था कि मोशे ने सिर्फ और सिर्फ यहोवा खुदा की परस्तिश की और उसकी ही खिदमत गुजारी की All थी। the other children of Israel, they went on to serve the other gods. बाकी सारे इस्राएल के बच्चों ने बहुत सारे दूसरे बेगाना देवताओं की इबादत करने को चले गए। Even his own brother Aaron made a golden calf, and through which the children of Israel were fallen into idolatry. उसके यानी मोशे के खुद के सगे भाई ने भी, अहरोन ने भी एक बछड़े की इबादत करने के लिए इस्राएलियों को गुमराह किया था। But what did Moses do? लेकिन मोशे ने क्या किया था? Was only serving the Lord उसने सिर्फ और सिर्फ खुदा की इबादत ही की थी till the end. आखिर तक। That's why the word of God declares, इसीलिए खुदा का कलाम बयान करता after है Moses was taken up, कि मोशे के ले जाए जाने के when the बाद, Lord spoke to Joshua for the first time, जब खुदा ने पहली बार यहोशुआ से बात किया, what did he say? तो क्या किया था? Though he was known as a prophet, यहोशुआ, no, Moses. मोशे तो एक नबी था, Though he was a leader, वो तो एक लीडर था। he tells Joshua, वो यहोशुआ से कहता now है, Moses my servant is dead. मोशे मेरा आका जो है वो मुर्दा है। That's the title the Lord gave to Moses. ये है एक लक़ब या टाइटल जो खुदा ने मोशे को दिया था। And now if you see in Joshua chapter 1 and verse 5, अगर आप अब यहोशुआ की किताब बाब नंबर 1 और आयत नंबर 5 the Lord देखेंगे, told Joshua, तब खुदा यहोशुआ से कहता है, as I was with Moses, so will I be with you. जैसे मैं मोशे के साथ था वैसा ही तेरे साथ रहूंगा। That is what Joshua chose. यहोशुआ ने इस बात को चुना था। I want the Lord to be with me. उसने चुना था और कहा कि मैं चाहता हूं कि यहोवा मेरे साथ रहे। How could the Lord be with Moses? यहोवा खुदा कैसे मोशे के साथ रहता था? There's one single reason, main reason, that he served the Lord. एक ही वजह से, वो वजह ये थी कि वो खुदा की खिदमत गुजारी करता And था। therefore he's throwing this challenge towards the end of his life. और इसलिए ही वो ये सवाल अपने लोगों के दरमियान, उनके सामने वो पेश करता है अपनी जिंदगी के I'm not इख्तिताम में। bothered about you all now. हाँ, वो कहता है कि मैं आप सबों के बारे में अब फिक्रमंद नहीं I do हूँ। not know how your attitude will be toward the Lord. खुदावंद यहोवा के बारे में आपका रवैया कैसा रहेगा, मैं इसका फिक्रमंद नहीं हूँ। But as for me and my family, लेकिन वो कहता है कि मैं और मेरे घराने को लेकर तो we will serve the Lord. हम तो जरूर यहोवा की परस्तिश करेंगे। As a family, it was a serving family. एक वो घराना खिदमत गुजारी का घराना था। How is our family? हमारा घराना आज कैसा है? As a family, am I serving the Lord? एक घराना बनकर मेरे घराने के साथ मैं खुदा की खिदमत गुजारी करता हूँ क्या? I may be serving the Lord. मैं शायद खुदा की खिदमत गुजारी कर रहा What about हूँ, my family? लेकिन मेरे घराने के बारे में क्या है? What about my wife? मेरी बीवी के बारे में क्या What है? about my children? मेरे बच्चों के बारे में क्या है? The Lord desires that we should serve Him. खुदा चाहता है कि हम उसकी खिदमत गुजारी करें। Dear beloved, for all the blessings with which the Lord has blessed us, this is the least that we can do for the Lord as a family. अजीज़ों, जितनी बरकतें खुदा ने हम पर बरसाई थी, अब इन सारी बरकतों को पाने के बाद इतना तो हम ज़रूर करेंगे, हमारे घराने समेत खुदा की इबादत और खिदमत गुजारी हमें करना चाहिए। And finally, और आखिर में in book of Isaiah, यशायाह की किताब chapter 8, 8वीं आयत, verse 18. 8वां बाब और 18वीं आयत। Isaiah chapter 8 यशायाह की किताब 8वां बाब and verse 18. 18वीं आयत। Behold, I and the children whom the Lord hath given me are for signs and for wonders in Israel from the Lord of hosts, which dwelleth in Mount Zion. देख,
मैं उन लड़कों समेत जो यहोवा ने मुझे बख्शे रब्बुल अल्फाज की तरफ से जो कोहे सियोन में रहता है इसराइल के बच्चों के दरमियान निशानों और अजाइबो गराइब के लिए हूँ। What is this man of God saying? ये मर्द खुदा क्या कहता है? I and my family मैं और मेरा घर will be for signs and wonders. हम खुदावंद के लिए निशानों और अजाइबो गराइब के लिए रहेंगे। What is the meaning of those two things? इन दोनों का मतलब क्या है? Will be for signs. हम निशान बनकर रहेंगे। The actual meaning of this is इसका मतलब ये है, showing direction, इसका असल मतलब ये है कि एक डायरेक्शन दिखाना, giving guidance. रहनुमाई करना। When we go on the highways, जब हम हाईवे पे जाते रहेंगे we find the signboards. वहाँ पे साइन बोर्ड हमको दिखते रहेंगे। What is that signboard? वो साइन बोर्ड क्या कहते हैं? It says narrow no road वो ahead. कहते हैं कि आगे में सड़क बहुत नैरो होता है, A very sharp curve. वहाँ पे शार्प कर्व रहता है, Speed breaker ahead. आगे स्पीड ब्रेकर है। They're very important. ये तो बहुत अहम की बातें And if you हैं। don't pay attention to those signboards, अगर इन साइन बोर्ड्स को हम गौर से नहीं देखेंगे it will be very fatal for you. आपको बहुत जानलेवा भी हो सकता You है। may even lose your life. आपकी जिंदगी से आप हाथ धो बैठेंगे। So they are very, very important. इसीलिए बहुत अहमियत रखते हैं ये साइन In बोर्ड्स। the same way, इसी तरह what Isaiah says is, यशायाह क्या कहता है? oh, we want to be signboards preventing and protecting people from damnation. हम निशान बनकर साइन बोर्ड्स बनकर रहना चाहते हैं जो ताकि हम लोगों को फना होने से, हलाक होने से बचा सकें। Beloved, that's what the Lord desires us also. अजीजों, खुदावंद यही चाहता है। Many are in that highway. बहुत सारे लोग इस हाईवे में जा रहे We हैं। read about that in Matthew's Gospel chapter 7. मत्ती की खुशखबरी बाब नंबर 7 में उसके बारे में पढ़ते हैं। Two ways are mentioned there. वहां पे दो सड़क के बारे में लिखा हुआ है। The broad way बहुत ब्रॉड वे एक है and also the narrow way. और एक नैरो वे है। In which way many people are going? आप क्या कहते हैं? किस रास्ते पर बहुत सारे लोग जा रहे हैं In which way few are going? और किस रास्ते में बहुत कम लोग जा रहे हैं? There are few only in the narrow way. बहुत सारे लोग, बहुत कम लोग नैरो वे में जाते हैं, Many are going in the broad way. लेकिन चौड़े रास्ते में बहुत सारे लोग जाते रहते And the हैं। Lord says where that way is leading. और खुदावंद कहते हैं कि वो चौड़ा रास्ता कहाँ जाता है? It is leading only to destruction. वो चौड़ा रास्ता जो है वो हलाकत तक जाता है। It is only leading to the lake of fire. सिर्फ और सिर्फ आग की झील तक वो ले जाता है। But if they have to be prevented, लेकिन अगर उन लोगों को हमें रोकना है तो, if they have to be stopped, उनको अगर हमें रोकना है तो, if they have to be saved, उनको अगर बचाना है तो, if we have to save them for eternity, उनको हमेशा के लिए बचाना है। there are many who are in this way. ये इस चौड़े रास्ते पे जो जा रहे हैं, Many neighbors are in that way. हाँ, बहुत सारे पड़ोसियां भी, हमारे पड़ोसी लोग जा रहे हैं। So what we should do? हमें क्या करना है? What is the role we have to play as a हमें family? किस किरदार से, मतलब घर हम हमारे घराने को किस किरदार को निभाना चाहिए? We must be like a signboard. हमें एक साइन बोर्ड बनकर जीना चाहिए। This is the way. उनको दिखाना कि यही रास्ता The Lord है। has given already the lead with regard to the way. हाँ, खुदा ने हमको लीड दिया था कि राह क्या है। The Lord Jesus said, यीशुआ खुदावंद ने कहा, I am the way, the truth and the life. उन्होंने कहा कि मैं ही राह और सच और जिंदगी हूँ। No man can come to the Father by me. मेरे वसीले के बगैर कोई भी खुदा बाप के पास नहीं पहुंच सकता। What the Lord means is, इसका वहाँ खुदा का मतलब ये है, I am the way to salvation. मैं ही नजात का रास्ता हूँ। I am the way for that blessed eternity. उस मुबारक अब्दियत का मैं ही रास्ता हूँ। Or simply, I am the way to heaven. या खुदावंद आसान लफ्ज़ों में अगर कहा जाए तो वो कहते हैं कि मैं ही आसमानी बादशाहत तक पहुंचाने वाली राह हूँ। So what do we do? तो हमें क्या करना चाहिए? We simply say through our signboard, He is the way. हमें सिर्फ इतना ही कहना है साइन बोर्ड्स बनकर कि वही है वो रास्ता। In Him is truth. उसी में हकीकत है, सच्चाई है। Through Him is salvation. उसी से नजात मिलती है। Are we such signboards? क्या हम उस तरह साइन बोर्ड जैसे हैं? And then Isaiah says here, और उसके बाद यशायाह कहता है यहाँ पे, wonders. हम अजाइब और गराइब बनकर रहे हैं। What is the meaning of this wonders? ये अजाइब और गराइब का मतलब क्या है? One of the titles that Isaiah gives in the very next chapter, chapter 9, about the Lord is that He is wonderful. और यहाँ पे यशायाह कहता है अगले बाब में, 9वां बाब में खुदावंद के बारे में कि वो है अजीब।
those who belong to him, जो भी खुदावंद के लोग होते हैं, those who become his children, जो खुदावंद के बच्चे होते हैं, they are called as the children of the wonderful. उनको उस अजीब खुदा के बच्चे कहा जाता है, And they are the family of the wonderful. और वो उस अजीब खुदा के घराने बनते हैं। And what do they do? और वो क्या करते हैं? What will you find in them? उनकी जिंदगियों में क्या पाते You हैं? find wonder after wonder in them. उनकी जिंदगियों में अजीब बात के बाद और एक अजीब अजाइब और गराइब हम देखते हैं। In other ways, in other words, और अगर आसान लुगत में अगर कहना चाहिए, they are families of wonders. वो लोग अजाइब और गराइब का घराना बनते हैं। That's why when the people of the world look at us, इसीलिए जब दुनिया के लोग हम पर गौर करते हैं, they observe wonders in our lives. हमारी जिंदगियों में अजाइब और गराइब देखते हैं। They find wonders in our prayer life. हमारी दुआई जिंदगी में वो लोग अजीब बातें देखते हैं। They find wonders in our life of worship. हमारी इबादत की जिंदगी में भी अजाइब और गराइब देखते हैं। They find wonders in our sincere life that we lead in this world. और खुदा के सामने जो सिंसियर जिंदगी हम जीते हैं उसमें भी अजाइब और गराइब देखते हैं। That is how we are a family of wonders. इस तरीके से हम खुदा के सामने अजाइब और गराइब के घराना बनकर रह सकते That's हैं। what Isaiah desired. यशायाह ने वही चाहा था। Lord, me and my children, वो कहता है, ऐ खुदा मैं और मेरे बच्चे, we want to be like signs, signboards. हम इस दुनिया में साइन बोर्ड्स जैसा जीना चाहते And we हैं। also want to be a wonder or challenge in this world. इस दुनिया में हम अजाइब और गराइब या चैलेंज बनकर हम रहना चाहते So may हैं। the Lord make us like such families. खुदावंद हमें हमारे घरानों को इस तरह बनाए। So through the life of Crispus, तो क्रिसमस की जिंदगी the Lord से is bringing before us these challenges. खुदावंद हमारे सामने ये सवाल या चैलेंज ला रहे हैं। May the Lord speak to us. खुदावंद हमसे और ज्यादा बात करें And may the Lord give us the grace to set things right wherever it is required. और खुदावंद जहाँ भी ज़रूरी है हमारी ज़िंदगियों में जिन बातों को भी सुधारना है उनको सुधारने का रहम हम पर अता करें। So in the light of the word of God, तो खुदा के कलाम के नूर में let us examine what sort of families we are. हम अपने आप को परखेंगे और जांचेंगे कि हम किस तरह के घराने हैं What is the impact we are having upon others. और दूसरों पर हम क्या असर डाल रहे हैं। Like Crispus and his family, they had an impact on many Corinthians. क्योंकि क्रिस्पस और उसका घराना जो है बहुत सारे कोरिन्थियों की जिंदगियों पर असर कर सके। So wherever the Lord has kept us, तो जहाँ कहीं खुदा ने हमें रखा है may we be a challenge to others. हम वहाँ दूसरों के सामने एक सवाल या एक चैलेंज जैसा रह We सकें। may be example to others. हम दूसरों के लिए एक नमूना बनकर रह सकें। May the Lord help us. खुदावन हमारी मदद फरमाए। So wherever we have failed, तो जहाँ भी हमने सरक गया, we let us ask the Lord's forgiveness. हम खुदावंद के पास आकर मुआफी मांगेंगे There are defilements, let us ask his cleansing by his blood. और खुदावंद यीशुआ के खून में धोकर अपने आप को नेको पाक बना लेंगे। And then let us take part worthily in the Lord's table. और उसके बाद खुदावंद की इस मेज में हम पाकीज़गी के साथ हाथ डालेंगे।